Hello, class. A very good morning to all of you. I'm here. This is Viva. I'm here with a new chapter for you. The chapter name is, as you can see on your screen, the chapter name is The Tree Huggers. Chapter number 1. What is the meaning of huggers? Do you have listen the word hug? Hug means gale lagana, to embrace someone. So here is the person, those who hugs the trees. ठीक है, जो trees को गले लगाते हैं. The suspense create the who are the persons who hug the trees only. As you can see in the screen that there is a picture in front of you. Here is a good tree plantation and here is a deforestation, means यहाँ पर पेड़ों को काटा जा चुका है. What is written here? So see, have you ever wondered how life would be without trees? Discuss with your friend and share your thoughts. क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि what will be the life without trees? कि अगर हमारे आसपास trees ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी? There will be no greenery, there will be no fresh air, and there will be no beauty in nature. So in this chapter they are going to tell us about what is the importance and how the people love the trees, like that. So carry on the story, look in front very carefully and note down the meaning as well. This is a true story that took place many years ago but still inspires and motivates us. ये एक सच्ची कहानी है जो बहुत साल पहले हैपन हुई थी, लेकिन आज भी ये हमें इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्पायर? इंस्पायर मीन्स there is a meaning. I have told in my previous videos in other classes that in this side, in the blue points, these are the word meanings. So note it down in your notebook. What is the meaning of inspire? Inspire means to give somebody the desire and confidence to do something well. Means आप किसी को इंस्पायर करते हो. If someone is doing very well, कोई है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप उसको देख के ये फील आ रहा है कि आप भी उससे अडेप्ट करना चाह रहे हो कि हाँ मैं भी ऐसे ही अच्छा काम कर सकता हूँ. दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. मोटिवेट मीन्स होता है द इनकरेज समवन टू डू समथिंग दैट इन्वॉल्व्स द हार्ड वर्क. मोटिवेशन मीन्स होता है अगर आप कुछ कठिन काम कर रहे हो और आपको कुछ बहुत अच्छा अचीव हो रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप अच्छी पोजीशन अचीव कर रहे हो, इट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन. हार्ड वर्क करके आप अच्छी जगह को अचीव करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन. सो लेट अस स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड Khejarli in Rajasthan lived people who did not like hunting of animals and cutting down the trees. एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव है राजस्थान में जिसका नाम है खेजराली. Here people lived those who did not like, जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था hunting of the animals का शिकार करना, hunting of the animals and cutting down the tree, पेड़ों को काटना. They loved both animals and tree. वो लोग बहुत ज़्यादा एनिमल्स और ट्रीज़ को प्यार करते हैं. The people lived happily in this village. लोग जो हैं बहुत खुशी खुशी इस गांव में रहते हैं. Each person in the village planted a tree and took good care of it. हर इस गांव में जो भी लोग हैं वो एक एक पेड़ को प्लांटेड करते हैं and they took care a lot of that trees. This village was under a Maharaja's rule who wanted to build a palace for himself and his family. ये जो विलेज है ये किसके अंडर में है? इसके यहाँ पर एक महाराजा हैं जो यहाँ पर रूल करते हैं. वो एक बार उनके दिमाग में अपना एक पैलेस, PALACE, पैलेस मीन्स होता है महल बनाना चाहते थे वो अपने और अपनी फैमिली के लिए. सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग वुड फ्रॉम forest. The soldiers started their search for wood. अचानक से क्या हुआ कि राजा को अपना पैलेस बनाना था, इसलिए उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया. तो सोल्जर्स जो है वो कहाँ जाते हैं? उन्होंने सर्चिंग स्टार्ट कर दी. द सोल्जर्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वुड. गॉट इट? They found a small village that was full of tree. उन्हें जब सोल्जर्स उसकी सर्च करने निकले यानी कि तलाश में निकले तो उन्हें एक छोटा सा गांव मिला जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे. The soldiers went there but as soon as they started to cut the first tree they heard a voice, stop.
एज सुन एज जैसे ही उन्होंने पहला पेड़ काटना शुरू किया, दे हर्ड, उन्होंने आवाज़ सुनी, स्टॉप, समवन हैज स्टॉपिंग देम, प्लीज़ डोंट कट द ट्री। क्या आवाज़ आई कि प्लीज़ इन ट्रीज़ को मत काटो। दिस इट वॉज द वॉइस ऑफ अमृता विश्नोई, अ वुमेन। ये आवाज़ किसकी थी? देर इज़ अ लेडी हुज नेम वॉज अमृता विश्नोई, हु हैज़ प्लांटेड द ट्री, क्योंकि वो पेड़ जो वो काटने जा रहे थे वो किसने प्लांट किया था, किसने लगाया था? प्लांटेड मीन्स लगाना भी होता है पेड़ों को, ठीक है। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ट्री, हग्ड इट, वो पेड़ के बिल्कुल ठीक सामने खड़ी हो गई और उसने कस के उस पेड़ को, देखो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एंड शी हग द ट्री, उसने कस के पेड़ को गले लगा लिया, विद बोथ हर हैंड एंड सैड, और उसने क्या कहा, वेट अ मिनट, एंड शी सैड, she said with both her hand and said, before you cut this tree you will have to cut me। उसने कहा कि अगर आप इस पेड़ को काटना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मुझे कट करना पड़ेगा, मुझे काटना पड़ेगा। आर यू गोइंग टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर दिस? आज सोल्जर्स ने उससे क्या पूछा, क्या तुम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान करना, टू गिव अप समथिंग फॉर वैल्यू, कि अपनी लाइफ दे देना या कुछ कोई भी चीज़ अपनी सेक्रीफाइस कर देना, बलिदान कर देना किसी अच्छे काम के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, व्हाट इज द आंसर? यस आई विल, उसने कहा हाँ मैं करूँगी। आई लव दिस ट्री एज आई लव माई फैमिली, मैं इस पेड़ से उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपनी फैमिली से। केम द प्रॉम्प्ट रिप्लाई, प्रॉम्प्ट मीन्स होता है अ क्विक रिप्लाई, ये यू कैन सी द आंसर, एक्ट ऑफ क्विकली, उसने बहुत जल्दी से जवाब दिया, यस मैं अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दूंगी क्योंकि मैं इस पेड़ से अपनी फैमिली की तरह प्यार करती हूँ। वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप बाय द लेडी? द soldiers try to explain that as it was Maharaja's order to cut the tree, soldiers try to explain, उन soldiers ने उसको बताने की कोशिश की कि ये तो हमारे महाराजा का ऑर्डर है कि पेड़ों को काटना है। She should respect it, उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे राजा का रेस्पेक्ट करना चाहिए। It was useless to give her life for the tree, और तुम इस पेड़ के लिए अपनी लाइफ गंवाना चाहती हो, इट इज़ यूजलेस, ये बिल्कुल बेकार बात है। बट अमृता विश्नोई रिफ्यूज टू लीव द ट्री, लेकिन उसने पेड़ों को रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया, टू लीव द ट्री मीन्स पेड़ को छोड़ने से उसने बिल्कुल मना कर दिया। बोले कुछ भी हो, आपके राजा ने कहा हो, किसी ने कहा हो, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी थिंग, शी डजंट वॉन्ट, कुछ नहीं सुनना चाहती थी वो, ठीक है। द सोल्जर्स बिकम फ्यूरियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूरियस? फ्यूरियस मीन्स होता है वेरी एंग्री, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरी एंग्री मीन्स बहुत गुस्से में हो जाते हैं, एंड कट द ट्री, वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और वो ट्री को कट कर लेते हैं। अमृता द ट्री लवर, अमृता वो जो पेड़ों को बहुत प्यार करती थी, सेक्रीफाइज्ड हर लाइफ, और उन्होंने एंड डाइड वाइल प्रोटेक्टिंग द ट्री, और उसकी भी उसी में वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती। वो सोल्जर्स उसको भी मार देते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि राजा का ऑर्डर है, अगर पूरा नहीं होगा तो इनकी लाइफ को खतरा है, तो वो उस लेडी को मारते हैं और पेड़ को कट करके ले जाते हैं। सो सैड। व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? सून, अचानक से क्या हुआ, मैनी पीपल ऑफ द विलेज केम फॉरवर्ड एंड गॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल, इसी स्ट्रगल में, ये जो स्ट्रगल चला, इन्वॉल्वमेंट होता है क्लास, टू पार्ट ऑफ समथिंग, उन्होंने भी जब उन्होंने देखा कि अमृता विश्नोई गॉट डाइड, जब उसने कहा कि पेड़ों को बचाने के लिए ये अमृता विश्नोई अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकती थी, वाई वी डोंट, तो वो देखो यहाँ, ये देखो सारे लोग आके पेड़ों से ऐसे से इस स्ट्रगल में खड़े हो गए कि कोई बात नहीं, हमें मरना पसंद है लेकिन हमारे पेड़ों को कोई ना काटे। ब्रेव मैन एंड वीमेन एंड द विलेज लेड डाउन देयर लाइव्स टू सेव द ट्री, उन लोगों ने सबने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए वो रेडी हो गए, टू सेव द ट्री, किसको बचाने के लिए? पेड़ों को बचाने के लिए। सो they made it impossible for the soldiers to cut the tree, ऐसा करने से क्या हुआ, अब सोल्जर्स ने सोचा कि कितने लोगों को मारेंगे, ये तो सारे के सारे पूरा गांव आके खड़ा हो गया है, तो इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर द सोल्जर्स, ये अब तो सोल्जर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि सबको तो नहीं मार सकते, भाई एक लेडी थी उसको मार दिया, अब तो आते ही चले जा रहे हैं। सो When the महाराज केम टू नो, जब अबाउट दिस स्ट्रगल, जब इस स्ट्रगल के बारे में, ये जो संघर्ष, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना, इसके बारे में जब महाराज तक बात पहुंची, ही फेल्ट वेरी सॉरी, उसको बहुत दुख हुआ। ही वेंट टू मीट द पीपल ऑफ द विलेज, वो वहाँ के लोगों से मिलने गया। ही एपोलोजाइज्ड मीन्स क्लास होता है टू से सॉरी, उसने वहाँ जाकर माफ़ी मांगी सबसे, एंड प्रॉमिस टू गिव दैम
गोल्ड कॉइन्स, और वहाँ पे उसने कहा कि राजा ने कि मैं आपको इन सब पेड़ों के बदले में गोल्ड कॉइन्स दूंगा, बट पीपल रिफ्यूज्ड, लेकिन लोगों ने रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया. देन एंड सैड, एंड सैड योर हाइनेस, महाराज के लिए दूसरा वर्ड क्या है क्लास? एक आपने एक चीज़ मिस कर दी यहाँ पे, सॉरी, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ. देयर वॉज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस हेयर, सॉरी, दैट गिव अनदर वर्ड फॉर द महाराज. महाराज को दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं? यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड फॉर इट. गॉट इट? देन वेयर इज द स्टोरी? देयर the king says, they says, your highness, if you want to give us something, then please ban cutting the trees and hunting of animals. तो उन लोगों ने कहा कि महाराज, your highness, if you want to give us something, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग को और एनिमल्स को हंटिंग को बैन कर दीजिए. बैन मीन्स to give an official order to no one be able to cut down or hunt our animals. Okay, then the Maharaj accepted their wish. महाराज ने उनकी विश एक्सेप्ट की. आफ्टर दैट डे द पीपल इन द विलेज लिव्ड हैप्पीली, वो लोग खुशी खुशी रहने लगे. बट दे ऑल्सो रिमेंबर्ड देयर हीरोज हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द लव ऑफ ट्री. लेकिन वो कभी भी अपने उन लोगों को भूल नहीं पाए जिन लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया. दे आर जस्ट लाइक देयर हीरोज. मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, इन 1970 सुंदर लाल बहुगुणा, it is a student, we remember that it is a real story, he is the person, along with some women started a चिपको मूवमेंट. इन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? चिपको मूवमेंट. चिपको मीन्स स्टिक, चिपक जाना, ठीक है. विच वॉज इंस्पायर्ड बाई अमृता विश्नोई, जो कि किससे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने स्टार्ट किया था सुंदर बहुगुणा जी ने? अमृता विश्नोई ने, जिसने पेड़ों से चिपक कर उनको हक करके पेड़ों को सेव किया था. द पर्पस ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स होता है इस आंदोलन का पर्पस मीन्स उद्देश्य, वॉज टू प्रोटेक्ट ट्री इन द फॉरेस्ट एंड फ्रॉम बीइंग कट. उनका उद्देश्य क्या था कि जो जंगलों में पेड़ों को काटा जाता है उनको प्रोटेक्ट किया जाए. इट फर्स्ट स्टार्टेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ जिसका नाम है चमोली. सबसे पहले ये आंदोलन वहाँ पे स्टार्ट हुआ. एंड देन इट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. उसके बाद धीरे धीरे ये दूसरे देश के दूसरे पार्ट्स में भी फैल गया. वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ द चिपको मूवमेंट वॉज द वे इज इट इन्वॉल्व वुमेन. उसमें क्या था, सबसे उसकी बेस्ट थिंग क्या थी कि इस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा किसने पार्टिसिपेट किया था? वीमेन ने, औरतों ने. इन चमोली डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 1974 अ ग्रुप ऑफ वीमेन प्रोटेक्टेड 25,000 ट्रीज फ्रॉम बीइंग शोल्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट. इस 1974 में एक वीमेन के ग्रुप ने 25,000 ट्रीज को बचाया था कि गवर्नमेंट को बेचे जाने के लिए. दिस मूवमेंट gave women the power to change their world. ये वही मूवमेंट यानी कि आंदोलन था जिससे वुमेन को पावर मिली कि if they want they can change their world at their own. So student, in this side there are few questions. You have to find out the answers and you have to search, write down the meaning given in the left or right side of the chapters. Pause the video and note down all the meanings in your notebook. I hope you will get the meaning of the chapter. In the next video I will come with the next exercise. Thank you. Have a nice day.